for, for National Center for Promotion of Employment for Disabled People, and APPI Youth Fellowship on Disability, wherein he is involved in the engagement and coordination aspect of the fellowship, as well as documentation of the progress of the fellows. With an experience of over 3 years, Sir has an experience in implementing livelihood programs and project management strategies in the rural hinterlands of Madhya Pradesh, Odisha, Chhattisgarh, Maharashtra, and West Bengal. We are indeed honored to have you here with us, sir. So finally getting started with the session. Sir, all over to you. Very good afternoon, everybody. Yeah, good afternoon, sir. You're audible. It's a real privilege to be again with the students of Delhi University, especially Ramlal Anand College, the Bhumika Trust, and it's really wonderful to share the ties with Mr. George Ibrahim and what is his name? I just forgot his name. From NCPD, and you know, a wonderful friend. Friends, here we are, you know, to celebrate the, you know, 55th International Day for White Cane celebrations. And, you know, it's really empowering that a person with visual disability, especially blind person, could achieve near independence with the help of an instrument, which is a low-cost solution. Any other disability may need, you know, very expensive equipments to enable themselves, and it's really a wonderful, you know, invention as far as the equipments regarding the persons with disability are concerned that stick a white cane, which we generally understand that a person with blindness should be given white cane, and a deaf blind has to be given a cane with different colors. So, you know, it's a real privilege to celebrate this kind of independence. And it is not that people will help us in claiming our rights. It is the process of an independent life which will actually empower us to have dignity in the society. So, friends, with this, I you know, would like to know my target audience so that I could you know, address them with their comfortable you know, communication. जो लोग हैं, अगर सब लोगों को इंग्लिश में समझ आता है तो we can talk in English. Otherwise, as it is introduced by our anchor, it could be better to be bilingual. Bilingual, okay. तो जो महत्व है श्वेत छड़ी का, वो बहुत अपने आप में एक हमें शक्ति देने का काम करता है, हमें समर्थता देने का काम करता है. It is really empowering the visually challenged person, and it's a, you know, miracle for others that a blind person can move independently on a very crowded road, in a crowded place, in a crowded mall, you know, without seeing anything, only with the help of a cane. तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इससे बड़ा सेलिब्रेशन शायद ही कोई हो सकता है.
जो हम लोग कर सकते हैं कि एक ऐसी छड़ी जिसकी की कॉस्ट एक नॉमिनल कॉस्ट होती है, 100 रुपए से नीचे आपको मिल जाएगी. देर आर हाईटेक केन्स ऑल्सो, बट यू नो उस हाईटेक केन में भी पीपल आर नॉट कंफर्टेबल टू यूज देम. काफी लोगों को और भी कंफ्यूजन हो जाता है उस केन को यूज करने के लिए. शुरू शुरू में बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो यही सोचते हैं कि ये जो वाइट केन जो बेसिक है ये सबसे बढ़िया है. और इवन ये फोल्डिंग स्टिक्स है, ये भी काफी लोग यूज करते हैं, बट आप विलेज लेवल पे जाओगे तो वहां पे लोग प्रेफर करते हैं कि जो ट्रेडिशनल लाठी है उसी को यूज किया जाए, क्योंकि वहां पे गड्ढे भी होते हैं और भी बड़ी हर्डल्स होती हैं, और ज्यादातर फोल्डिंग स्टिक्स जो है वो टूट जाती हैं. So anyway, today I was invited to speak on social model of disability. और जैसा कि आपको पता है कि कई प्रकार के प्रारूप हैं विकलांगता के, जिसमें कि सामाजिक प्रारूप भी है. और जैसा कि चैरिटी मॉडल, बायोमेडिकल मॉडल, यू नो रिलीजियस मॉडल, right based model, functional model, human rights model. तो डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स की कैटेगरी की गई है कि हम लोग विकलांगता को किस प्रकार से देखते हैं. क्या ये एक सिर्फ मेडिकल समस्या है, क्या ये शारीरिक विकलांगता एक शारीरिक क्षमता ही है, या कुछ और भी है, या एक ऐसी ऐसी स्थिति है कि जहाँ पे कि लोगों को दया, धर्म, दान करने में काफी अच्छा लगे, और उनको जो है दे शुड फील प्राउड कि हमने आज अपने मदर के बर्थडे पे, लेट मदर के बर्थडे पे, लेट फादर के बर्थडे पे विकलांग लोगों को जाके खाना दे दिया. तो दे शुड फील हैप्पी कि दे कैन सेटिस्फाई देयर ईगो. या आज एक ब्लाइंड पर्सन को सड़क क्रॉस करवा दी, या उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत सेवा कर दी, डोनेशन दे दी उनकी ऑर्गेनाइजेशन में जाके. क्या ये मॉडल है कि भाई डिसेबिलिटी का होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि लोगों को कम से कम अपने धर्म, अपने स्वाभिमान का एहसास हो सके. तो वेदर वी बिलीव इन दिस काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, या फिर हम इसको ये समझते हैं कि ये बायोमेडिकल मॉडल है कि भाई ये एक मेडिकल समस्या है, एक शारीरिक विकलांगता जो है वो केवल मेडिकल वर्ड की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, और उसका कारण भी कोई बीमारी हो सकती है, कोई रोग हो सकता है, या कोई भी कारण से किसी का शरीर का अंग जो है वो मारा जाए, तो उसको केवल चिकित्सा से ही ठीक किया जा सकता है. या अगर चिकित्सा से ठीक नहीं किया जा सकता तो उसके लिए उनको किस प्रकार से उसका पुनर्वास किया जा सके, रिहेबिलिटेशन किया जा सके, ये इस मॉडल पे बातचीत. फिर आपका जो है सोशल मॉडल, जो सोशल मॉडल है इट इज अ सम टोटल ऑफ की विकलांगता कोई बायोमेडिकल उतनी समस्या नहीं है. अगर किसी की सपोज उंगली कट गई, या उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, या उसको एक कान से सुनाई नहीं दे रहा, या एक आंख से नहीं सुनाई दे रहा, या काफी कम दिखाई दे रहा है, तो वो काम तो अपना पूरा कर रहा है चाहे जैसे भी कर रहा है, लेकिन समाज उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं. कि विकलांगता एक सामाजिक समस्या है, या शारीरिक समस्या है, या एक धार्मिक समस्या है, या आपका जो है क्या ये एक ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकारों के लिए एक चैलेंज है, या फिर एक जो फंक्शनल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी है कि इनको एक स्पेशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके ऐसा काम चला दिया जाए ताकि ये अपनी आजीविका चलाते रहें. तो ये सारे मॉडल्स जो हैं अपने आप में यूनिक हैं. डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप से इस चीज को अप्रोच करते हैं, और
जो ये सामाजिक मॉडल है, ये प्रयास करता है कि हाँ, ये विकलांगता जो है केवल शारीरिक समस्या नहीं है, केवल चिकित्सा से संबंधित समस्या नहीं है, ये एक समस्या ऐसी है जो कि समाज के द्वारा बनाई गई। इस समाज ने एक अपने आप को एक हायरार्की बनाने के लिए, एक लंबवत श्रेणी बनाने के लिए, एक लोगों की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए डिफरेंट कैटेगरीज में रखा है। जैसे अगर हमारी महिला साथी हैं, तो महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से ज्यादा काम करती हैं। महिलाओं का समाज में प्रोडक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो सत्ता में उनकी जो सत्ता में भागीदारी है, पार्टिसिपेशन इन द political process, participation in power politics, power, economic power, social power, वो पूरा पार्टिसिपेशन उनका है नहीं। तो इसी प्रकार से विकलांग आदमी के लिए एक जैसे जो है रेशियल प्रॉब्लम्स भी है कि व्यक्ति के जो रंग को देख के उसकी हैसियत जो है समाज में तय की जाए, ऐसे ही किसी व्यक्ति की हैसियत उस हिसाब से तय की जाए कि वो उसके शारीरिक अंग पूरे हैं या नहीं है। ये बात बिल्कुल भी डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ डिस्कशन कि वो आदमी अपना काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, उसका रोल कितना है, कितना कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसको सिर्फ उसी बात पे ह्यूमिलिएट किया जाए, उसी बात पे उसके अधिकारों को छीन लिया जाए कि जिसमें कि वह व्यक्ति जो है किसी प्रकार से शारीरिक रूप से पूर्ण नहीं। तो ये मॉडल जो है, सामाजिक मॉडल जो है, प्रारूप जो है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ा जो है एक उद्घाटन का कार्य करता है कि भी एक्चुअली हमने क्या डिसेबिलिटी की समस्या को समझा है आज तक। अगर हम किसी समस्या को उसकी जड़ से ही नहीं समझेंगे तो उसका निदान नहीं कर सकते। चाहे हम उसको दिव्यांग कहें, चाहे सूरदास जी कहें, चाहे हम उसको भगत जी कहें, सूरमा कहें, या मुस्लिम वर्ड में जो है, इस्लाम में हाफिज कहते हैं। तो अलग अलग नाम देके कि या तो उसको बिल्कुल ही ऐसा सुप्रीम बना दो जैसे महिलाओं को बनाया जाता है, ये तो देवी है, ये माँ है, ये है। एक्चुअल पोजीशन सबको पता है कि महिलाओं की क्या है। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये सारी चीजें जो बहुत बड़ा चैलेंज है सामाजिक मॉडल के लिए, सोशल मॉडल के लिए, कि इसको समझा कैसे जाए। क्योंकि हमने जो टर्मिनोलॉजी दी वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा हाईली इट इज कंट्रास्टिंग। या तो उसको बिल्कुल ही ईश्वर बना दिया, उसको आपने दिव्यांग बना दिया या सूरदास बना दिया या कुछ बना दिया, और या फिर बिल्कुल ही उसको हाशिए पे रख दिया कि वो व्यक्ति जो है कोई भी खंडित मूर्ति है, उसको पूजा घर में नहीं रखा जाता। तो खंडित मूर्ति का क्या मतलब है? एक सिंबल है ये। कोई भी विकलांग आदमी है उसको उसके अधिकार नहीं दिए जा सकते। और यही था पहले कि किसी विकलांग व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था, विकलांग व्यक्ति को किसी प्रकार से नौकरियों में भागीदारी नहीं दी जाती थी। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि जो थर्ड जेंडर, सो कॉल्ड थर्ड जेंडर्स, उनको अभी हाल ही तक ही समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, जबकि सबको पता है कि थर्ड जेंडर का अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी कोई ऐसी फंक्शनल डिसेबिलिटी नहीं है कि जैसे वो पढ़ाने का कार्य ना कर सके या कोई
पुलिस का कार्य न कर सके या कोई भी ऐसा कार्य जो प्रशासनिक कार्य है या प्राध्यापन का कार्य है या किसी भी प्रकार का कार्य है वो नहीं कर सकता, सबको मालूम है। लेकिन उसके बावजूद भी मेडिकल टेस्ट किया जाता था और उसमें ये टेस्ट किया जाता था कि व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से जो है जो अक्षम्य नहीं है किसी भी प्रकार से। तो जब भी हमारी गवर्नमेंट नौकरी लगती थी तो सबसे पहला काम क्या किया जाता था कि उसका मेडिकल टेस्ट कराया जाता। मेडिकल टेस्ट ये नहीं कराया जाता था कि उसको कोई बीमारी है, रोग है, तो ये कराया जाता था कि वो किसी प्रकार से डिसेबल्ड तो नहीं है, चाहे वो सेक्सुअली डिसेबल्ड हो, चाहे वो और प्रकार से डिसेबल्ड हो। और थर्ड जेंडर के साथ तो आप लोगों को पता है कि समाज ने किस प्रकार से उनके साथ अत्याचार किया, क्योंकि वो भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो उसको भी डिसेबिलिटी में ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। तो सोशल मॉडल जो है उसने इन सारे मुद्दों को उठाया और ये सब हमें बताया कि भाई किस प्रकार से हाउ कम वी कैन हैव a society which is so demoralizing, which is so you know uh, full of hypocrisy that we don't have to deal with we don't have to deal with uh, disability from medical point of view or technological point of view. First of all, we have to deal the disability with social point of view, because it is in the society you have to bring about the change. And maybe we have lots of people who may at the outset in the public places, in general conversation, they appreciate the disabled person, but when it comes to accept them as a friend, as a relative, as a person who is at the helm of power, people cannot digest it. हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स में जहाँ पे कि इंक्लूसिव एजुकेशन है, वहाँ पे you can ask any disabled person whether your classmates, your friends are willing to be friend with you. And believe me, no one will say, no classmate will say that he is not ready to become a friend. But actually, very limited people will come to be persons with disability in a at par, in equality. या तो वो आएंगे तो बहुत चैरिटी मॉडल से आएंगे कि भाई ठीक है यार, इनको एनएसएस की जरूरत है, इनको रीडर की जरूरत है, इनको थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो रोड क्रॉस कर दे या शॉपिंग के लिए ले जाए। तो विद ए माइंड ऑफ चैरिटी दे विल कम, बट नॉट एज ए फ्रेंड। I just invite my audiences कि they should share their experience, क्योंकि असली सोसाइटी हम लोग काफी टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो गया जहाँ पे कि we have overpowered our disability to a greater extent, whether he is a hearing impaired, whether he is a orthopedically impaired person or a blind person. In fact, computer and camera has liberated the blind person. Now he can do most of the things independently. 99% things he can do independently. But still, the society at large, due to ignorance or due to, their subconscious mind, they are not able to accept the persons with disability at par. They are not able to, not to talk of inclusiveness, they are not ready even to integrate them. They still believe that they should be studying in special schools. They still believe that they should be
having a special thing, special environment to play. They believe that they should have a special, recreation facilities. They should they believe that they should have special homes to live. So, you know, that is the subconsciousness which is going on for thousands of years in the mind of people, and it still continues. And I uh, invite few Arshina. She's Arshina. Arshana is audible. Diksha Singh. Diksha, can you hear me? Yes, sir. Yes, Diksha, what do you think about the persons with disabilities and their participation in the society? So I personally feel that they are much like, not talking about the prison scenario, people are being very supportive towards them, and as comparison to what it was earlier, their participation has increased a lot in today's case. So their participation has comparatively increased in Yes, every that is field. true. Of course, I don't disagree with you. But as I was talking, do you find any difference in the attitude of the people? So the positive attitude, I must say. Huh? You have you ever find any uh, a difference in the people at large, where you feel that they have some kind of discriminatory attitude towards persons with disability in the society? So I won't deny to this statement that there is a change in the attitude. But talking about in the, like in today's case, like we have also my one friend in my class, so we all are very supportive towards them, and people are changing and they are showing their support for the people who are visually impaired and with any such disability. So See, yeah. Diksha, I here just want to point out everyone in this world needs some kind of support. So, you also may be needing some kind of support. But do you think that you need only support? If I see from your perspective, and I think you may not be suffering from any kind of disability as it is given in the Act, though it is a general proverb that everyone is disabled, but I don't think you must be suffering from any kind of disability as legally we speak. So, but do you think that you always need only support? You don't need any other thing in the society. So just say that people are very supportive. Does it help? So, right, support is not the only element that the person need, but support can be one of the element that the person need. And along the support, there is a lot more thing that the everyone, not Yes, just the that I am talking about that gray area. Here you are right. Here you are right. I am talking about uh, you know uh, that only gray area where we feel that apart from support, the persons with disability need some and some other things from the society, and they want to give to the society also. So whether society is ready for that? Yes, Mohan, I could see Mohan also. He has been calling me
off and on, a wonderful person, very much conscious about his, rights, his duties, because he is doing the duty. I think he is one of the person who has organized this program, and despite his, limitations in a different way, he always tries to get the things right. मोहन जो है अपने आप में मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि भाई पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के बारे में बातचीत की जाए, विकलांगता के बारे में चर्चा की जाए, उनकी जो भी उनको सहायक करने वाले प्रोग्राम हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा उनको ऑर्गेनाइज किया जाए, और भूमिका ट्रस्ट जो इन्होंने बनाया हुआ है उसकी भूमिका काफ़ी सार्थक हो. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ सच ट्रस्ट वेयर आई फील दैट दे शुड work for the not only empowerment of persons with disabilities. We are not just people who can claim rights. We are ready to perform our duties also, but we want that the persons with disabilities should be treated at par and without any exceptions, because we don't want to become exceptions. क्यों मोहन? मोहन को लोग मोहन के नाम से जाने. मोहन जो कि एक छात्र है रामलाल कॉलेज का और ग्रेजुएशन कर रहा है, लोग इस नाते से लोग जाने, लेकिन इस नाते से नहीं जाने कि मोहन के साथ किसी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी है. So this denomination should not come first. This denomination should not become our surname. That is the thing. It should not become our surname. जैसे once someone was going in a DTC bus, the conductor said that, सूरदास जी कहाँ जाओगे? He said that, तुलसीदास जी मैं तो कश्मीरी गेट जाऊंगा. तो वो कहता नहीं मेरा नाम तुलसीदास नहीं है, मेरा नाम तो जो है वो है राम सिंह है. कह रहा जी राम सिंह है, अच्छा. कह रहा तो लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता लग गया सूरदास? कह रहा आपको दिखता नहीं है. कह रहा फिर मैं भी यही सोच रहा था कि तुलसीदास जी को तो दिखता था, तो आपका तुलसीदास ही होगा नाम. तो ये सारी बात जो है ये इस तरीके से सोशल मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी में सबसे बड़ा ध्यान यही रखा जाना चाहिए कि disability should not become the surname of yourself. It should not become the first denomination कि भाई मेरी क्लास में एक ब्लाइंड लड़का है, मतलब वो लड़का भी बाद में है और नाम तो चलो उसका किसी को पता ही नहीं है, ठीक है ना. सबको यही पता है भी एक ब्लाइंड लड़का है और ये उसका फर्स्ट नाम बन गया, ही इज ए ब्लाइंड पर्सन. ये उसका नाम नहीं पता किसी को भी, ना उसका कुछ और पता है वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है कैसा नहीं है, बस उसका तो एक सरनाम पड़ गया. जैसे क्लास में कह देते हैं कि एक खूबसूरत सी लड़की है क्लास में, वेरी ब्यूटीफुल, सो पीपल ट्राई टू दिस एंड शी डजंट लाइक. आप इसको जितना मर्जी बोल दो कि वो खूबसूरत लड़की है, शी वुड नॉट लाइक दैट. शी शुड बी कमेंटेड अपॉन ड्यू टू हर अपीयरेंस. ऐसे ही डिसेबल्ड पर्सन्स जो विकलांगता है, there should be some other considerations which should outshine them. So that is what the social model is, where you first acknowledge that person as a human being, then you acknowledge him what is his role in the society, then acknowledge him what is his economic or his educational status. Then you last thing would come where you identify or try to
acknowledge the disability of a person. लेकिन हमारा social model क्या करता है कि इसका रिवर्स करता है, बाकी सारी चीजें बाद में होती है, सबसे पहली चीज यही होती है कि उसको आइडेंटिफाई किया जाए एज ए डिसेबल्ड पर्सन. Who is this Moni? I could see one name, Moni. Who is that? Can you hear me? And who is Neeta? One is Pramila. Yes, sir. Neeta. Moni is here. What is your Moni? Yes, Moni, sir. what are you doing? Sir, I'm research scholar. Acha, where? Sir, in Delhi University, Department of History. Acha, very good, very good. So, yeah, lots of people from, I could see one Neeta history also I could see. So maybe history department is very active. And how come you are associated with Bhumika Trust? Sir, Ramlal Anand College organize some disability course on February to till July. So I was entered I just registered myself, or Acha, after that some message, yes, some message came from WhatsApp so group. what do you think that how society behaves with a disabled person? Sir, And it's what a are the 50-50. Like some people are very good, some people are very bad. maybe So I'm not saying people who do not, subscribe because to I'm the also needs of. I'm also disabled person. I couldn't walk properly. So sometimes people look at me like a mercy and like that, but some people look at me like a very brave girl like that. So it's kind of like 50-50. I can't say, sir, like fully agree with someone, and I heard lots of people. So it's my point of view. I don't know to others, but हाँ सर, थोड़ा सा तो है, like पहले से चेंजेस है, बट उतना नहीं है जो होना चेंजेस चाहिए. देखो, एक चेंजेस तो एक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उसके कारण कहीं है लोगों का एटीट्यूड. मेरे हिसाब से जो है लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, ये सर सिर्फ कोरोना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, क्योंकि जी टेक्नोलॉजी में किसी के पास कोई चारा नहीं है. जैसे जी सर की बात है, आई टेल पीपल दैट यू नो कैमरा एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैव लिबरेटेड वुमेन. इसी तरीके से केन, कंप्यूटर एंड कैमरा हैज लिबरेटेड persons with disabilities, especially blind people. जी तो सर तो लोगों का एटीट्यूड नहीं चेंज हुआ, कुछ ऐसा चेंज हो गया एनवायरनमेंट में कि लोगों को अपना एटीट्यूड चेंज करना ही पड़ा. डोंट यू थिंक? जी स्पेशली वुमेन के लिए भी मैं यही बात कहूंगा कि वुमेन के हालात बदल गए, इसलिए लोगों का एटीट्यूड बदल गया, ना कि लोगों का एटीट्यूड बदल गया तो वुमेन के हालात बदल गए. ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अब वुमेन इज नॉट मदर ऑफ 10 पीपल, 10 चिल्ड्रन, 5 चिल्ड्रन, 7 चिल्ड्रन. नाउ शी इज एन इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग, शी हैज इकोनॉमिक पावर. तो आप ना भी चाहोगे तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी ही पड़ेगी. ये नहीं है कि लोगों का कोई एटीट्यूड बदल गया. तो मैं इसी तरह से डिसेबल्ड का भी है. नाउ दे हैव इकोनॉमिक पावर, they are managing their affairs much independently than they used to 50 years ago, or because I think George Ibrahim ji is there, and he will tell you how hard it was to get education in those days. Don't think of employment. Employment was a dream come true for anybody if one gets it. Only thing is one had to fight for one's education. So, this is the way the society go.
And since we are now technologically empowered, we have well conceived, paraphernalia of rights mandated by the Constitution of India and the Acts of Parliament, and people will have to change their attitude towards persons with disability. So, if anybody from your side wants to ask question, one is free. I give again mic to the organizers. So I'm available for a few minutes more here. So please let me know. And my designation is I am associate professor, not assistant professor at Sri Aurobindo College. And I have not done only MPhil, I have done PhD also. So this was just for your information. I don't take pride, but I am. Only thing is, misinformation should not be spread. Okay, thank you, sir. I'm sorry from our side for the correction you made. Thank you, sir, for your words. We will go ahead and take some time for the questions now. Is there anyone who wants to raise any question? Anyway, you can always contact me after this program also. So I think we had plenty of discussion, and So if any specific question right now is there, otherwise you can. I am very much accessible. You can contact Mohan. Yes, you want to say something? सर मेरा एक छोटा सा क्वेरी था सर जो What is your name? आप सर मोनी है हाँ, मोनी बताओ. सर आप मॉडल्स के बारे में मतलब बता रहे थे उस टाइम पे तो सर एज ए हिस्टोरियन लाइक क्योंकि मुझे हिस्ट्री में थोड़ा काम करना है सो मॉडल्स को हम कैसे एज ए हिस्ट्री देखो के ऐसा है, मतलब इसका कोई different- क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं है, ठीक है ना. जी अगर जी आप कहो कि कोई चैरिटी मॉडल आया, फिर बायोमेडिकल मॉडल आया, फिर सोशल ह्यूमन राइट्स फंक्शनल मॉडल आया, यस इन्वायरमेंटल मॉडल आया, तो ऐसा कोई मेरे हिसाब से कोई क्रोनोलॉजी है नहीं, क्योंकि आज भी जी लोग डोनेशन बॉक्स भी रखते हैं, बेगर्स भी हैं, चैरिटी है, आज भी पीपल गो टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दे डोनेट. तो चैरिटी के सारे मॉडल तो साथ साथ चल रहे हैं. हाँ, ये हो सकता है कि which model is more prominent, that can be a matter of concern कि at which stage of history which model was prominent. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ह्यूमन राइट्स कोई आज का कंसर्न है. ह्यूमन राइट्स was as much as a concern 2000 2500 years ago as it is. Charity is being done as much as it used to be done 200, 2500 years ago, or you can go back further also. तो ये आपको थोड़ा सा सोसाइटी में देखना पड़ेगा कि जैसे हम लोग कहते हैं कि एंशिएंट पीरियड, मिडीवियल पीरियड, मॉडर्न पीरियड, लेकिन उसमें आप बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं कर सकते. ओनली थिंग इज विच मॉडल एट a time is predominant. Maybe charity model is more predominant in some countries. Maybe human rights model is more predominant in some places, or यस biomedical model is more prominent in some countries. So that is a matter of research, and not only research, your biased mind can also affect it. कि आपको वही कहते हैं ना, जैसे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है. एवरीथिंग लुक्स पेल विद जॉन्डिस आइज. तो ये बात है कि आपको कहाँ क्या दिखाई दे रहा है. किसी को सिर्फ यस डिस्क्रिमिनेशन ही दिखाई देता है हर तरफ, किसी को बड़ी यस पॉजिटिविटी लगती है, उसको 4 लोग पॉजिटिव मिल जाते हैं आपके साथ के, तो आप सोचते हो कि पीपल आर वेरी गुड, दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल.
और 4 लोग आपके आसपास के आपको खराब मिल जाएंगे, तो यू विल से दैट इस दुनिया से बड़ा नर्क कोई नहीं है। तो ये Yes. सारी एटीट्यूड की बातें हैं और एनवायरनमेंट की बात। So historian has to go independently deep into the facts and the Yes. history. You have to discover the facts. For that, you have to search the archives. You have to read various books, and then how much data you can collect, Yes, sir. at what age, है ना? Yes. That is very important. So how much access you have to know. If you read Homer, you will say that blind people are very intellectual. If you read Milton, you will say that blind people are really intellectual. If you read Surdas, you will say that there can be no better poet than Surdas. So, you know, you have to see, you have to cook your own facts in the history and come with the conclusions. We may accept it. We may accept your conclusions, or we can always challenge your conclusions also. That is why Yes. this Karl Popper used to say, there is nothing in this world which cannot be falsified. ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको झुठलाया ना जा सके. So, you know, that is the word, and that is, you have to tell us as a historian that what you perceive and which model you think that was more dominant at particular place at particular time. Thank you. Thank you, sir. Audio now Sir? unmuted. Hello. Hello. Yes, yes. Yes, sir. Sir, this is Mohan. हाँ मोहन, तुम कहाँ सो रहे थे? I named you. Yes, sir. वो थोड़ा फोन वन मिनट प्रॉब्लम Audio हो now रहा unmuted. था. सर इसमें एक मेरा व्यू पॉइंट भी है और एक क्वेश्चन भी है. व्यू पॉइंट सबसे पहले तो ये है कि जो डिसेबिलिटी अगर है Audio now तो unmuted. मेरे हिसाब Audio now से unmuted. डिसेबिलिटी एक पूरी तरह से समाज के द्वारा बनाई now गई है. unmuted. क्योंकि अगर कोई मतलब चाइल्ड किसी तरह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उसको उसी नाम से बुलाने लगते हैं एक तरह से. और देखो, उसके लिए एक बड़ी पुरानी बात है मोहन, पीने वाले को बहाना चाहिए. हाँ, मैं एक एग्जांपल है. मैं अपनी हॉस्टल में था अभी दिल्ली में. तो हमारे यहाँ कुछ लोग डोनेशन में खाना खाने आए. मैं गाने चला रहा था बहुत स्लो आवाज में और हम लोग खाना खा रहे थे. तो एक ओल्ड एज वुमेन थी. वो कहती है कि ये लोग गाने सुन रहे हैं, इसको तो भजन सुनना चाहिए. तो हमारे जो इंचार्ज हैं वो ब्लाइंड है. उन्होंने मुझसे कहा कि वो लोग ऐसा ऐसा कह रहे थे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें गाना नहीं बनाना चाहिए. तो अब हैरानी की बात ये है कि वो खुद ब्लाइंड है और उनके सामने उसने उस ओल्ड एज वुमेन ने कहा और उन्होंने सुन लिया और उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया. तो कहीं ना कहीं हमारे साथ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसके जिम्मेदार हम खुद ही होते हैं थोड़ा सा. कहते ना, 1000 जवाबों से अच्छी है मेरी एक खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख ली. तो बात यही है मोहन. Actually, that woman, I think she had a strong charity model in her mind. That she used to feel that persons with disability are meant to be meant to be for sufferings, and they should be devotional to cure their sins. तो उसका एक अपना एटीट्यूड था, और उस एटीट्यूड में बोलने से या एकदम रिएक्ट करने से कोई मेरे को भी फायदा नहीं लगता. हो सकता है मैं भी चुप हो जाता. तो ये बात है कि अब ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए नीड टाइम. एंड उसमें भी ये है कि पीपल आर फ्लेक्सिबल और दे डोंट वांट टू चेंज.
अभी देखो आज की डेट में भी आपको पता होगा, आप लोगों के दोस्त होंगे जो काफी चैरिटेबल हॉस्टल्स में रह रहे होंगे कि जहाँ पे श्राद्ध का भी खाना आता है, फिर किसी के पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं या कोई घर में एक्सपायर हो गया है या किसी का बर्थडे है, उस पर भी खाना आता है। तो अगर इस ओकेजन्स के लिए रिलीजियस रीजन से कोई खाना दे रहा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है, जैसे आप गुरुद्वारे में जाओगे तो गुरुद्वारे में अगर आपको वहां पे पंडित जी बैठे हैं और पंडित जी कोई मधुर गीत सुनना चाह रहे हैं, तो ये तो आप लोग भी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार ये तो बेकार का पंडित है भाई, इसके पास तो नहीं जाना ठीक है, ये तो अश्लील गाने सुनता है ना। ये तो वो आपके पास जिस भावना से आई, उसने उसी भावना को व्यक्त किया, तो उसमें मैं तो ये सोचता हूँ कि उसकी गलती नहीं है, गलती समाज की है या ऐसे इंस्टीट्यूट्स की है जो इस आधार पर अपना बच्चों का वेलफेयर चला रहे हैं या समाज सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो सरकार को चाहिए कि सरकार जो है, क्योंकि लोग टैक्स देते हैं और जो आज भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के स्कूल्स हैं, हॉस्टल्स हैं, वो सरकार की लायबिलिटी नहीं है। सरकारी स्कूल तो ज्यादातर बंद हो चुके हैं। आपको भी पता होगा कि ज्यादातर जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो चैरिटी पे चल रहे हैं। सरकार ने अपना बर्डन जो है वो खींच लिया है, सिर्फ हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन दे के। स्कूल्स आज भी सरकारी स्कूल ना के बराबर हैं, या जहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन है, वहाँ पे कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या डिसेबल्ड बच्चे, दिव्यांग बच्चे, सो कॉल्ड दिव्यांग बच्चे पढ़ सकें। तो अगर आप सोसाइटी इसी बेस पे चला रही है, इस चैरिटी मॉडल पे ही चीज़ों को चला रही है और लोग भी उससे बेनिफिट हो के एम्पावर हो रहे हैं, तो आप कैसे सोचोगे कि उसका एटीट्यूड बदल। वहाँ पे हर हॉस्टल में डिसेबल्ड के, मेरे को पता है कि 4,000 का लंच है, 5,000 का डिनर है। तो अगर इस एटीट्यूड के साथ आप संस्थाएं चला रहे हैं और लोग किस भावना से आपको खिला रहे हैं या किस भावना से आपको पैसा दिया जा रहा है, तो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भजन ही करो, भजन ही सुनो, आपको कोई राइट नहीं है अश्लील गाने या रोमांटिक गाने सुनने का, ठीक है ना। तो अगर आप रोमांटिक गाने सुनोगे तो उनकी वो चैरिटी अपनी बंद कर देंगे, चैरिटी बंद हो, फिर दे विल नॉट कम टू यू विद चैरिटेबल माइंड। तो मोहन, इन चीजों का जवाब बहुत सरल नहीं होता, एकदम रिएक्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आप जब तक किसी चीज की जड़ में नहीं जाओगे तब तक आपको ये बात पता नहीं लगेगी कि ये हो क्यों रहा है। आपको जड़ में जाना पड़ेगा, उस टाइम आप उस बुजुर्ग महिला को डांट भी सकते थे, कुछ भी कह सकते थे, बट उससे कोई पर्पस हल नहीं होता, क्योंकि वो जिस एटीट्यूड से डिसेबल्ड पर्सन के पास जाती है, पहले तो उस एटीट्यूड को चैलेंज किया जाना चाहिए। Audio now unmuted. दूसरा सर, इसमें थोड़ा एक्ट को लेकर बात करूंगा, जो हमारे एक्ट बने हैं सोशल मॉडल में कि। यस सर। कौन बोल रहा है? सर मोहन से बोल रहा हूँ। हाँ मोहन बताओ, तुम्हारी आवाज बहुत अलग तरीके से आ रही है। सॉरी टू इंटरफेयर मोहन, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है और थोड़ा सा लास्ट में काम करते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, लेट अदर स्पीकर्स आल्सो स्पीक, है ना। एक बार और स्पीकर जो है ओके नो दोनों को भी चांस देते हैं बोलने का, बिकॉज दे आर वेटिंग सिंस लॉन्ग। WhatsApp So let's- checking for new messages. I hope so you don't mind, right sir? So over to you, Diksha. Thank you, sir, for your words. Now we would like to invite George Abraham, sir, to speak. Good evening. Can you all hear me? Audio now unmuted. Yes, Yeah, sir. you are audible, George. All right. First of all, thank you very much, Bhumika Trust, Jayant, and the rest of you for actually inviting me this afternoon for this session, the White Cane Day celebration. And
This morning I was in a meeting where the topic was how effective is humble activism? And the topic was about various issues. It was not necessarily about disability. It was to do with discrimination of all kinds, whether it's color, whether it's gender, whether it is sex, whether it is sexual orientation, whether it is about disability, economic discrimination. So there were a lot of very strong opinions about what is wrong with the society, what is wrong with the community, and how people are being isolated, victimized, and excluded. So my first point is the society is collectively a group of people, group of human beings who live in a country or in a community or in a town or in a village. That is what society is. And society is made up of different kinds of people. And people coming from different exposure levels, people coming from different backgrounds, and people with different thinking. So I don't think there is any single hardcore view that you can attribute to a society. Normally, it's the majority of people who think in a particular way. So when it comes to people with disability, over my 31 odd years of working with people with disability from 1990 onwards, in fact, my experience and learnings, the first 30 years of my life and the next 30 years of my life, my understanding of disability has been drastically opposite. As a child growing up, I had my disability from the age of 10 months. And as a child growing up, I found that, I was part of a family. My family, my parents, they sent me to school at the correct age. They were supportive. Yes, I did have challenges in school. I could not see the blackboard. I could not read my books. But I found that my parents were very supportive. My teachers were very supportive. And over time, my classmates also were extremely supportive. And class KG to class 11 was a fairly smooth ride. Okay, on a day-to-day basis, there were challenges. I could not read the blackboard, so I had to depend on my friends to get their notes. I had to depend on my friends for combined studies. But then what I also noticed was that it was a give and take process. Because I would listen and understand, my understanding or ability to understand was much sharper. So normally my friends would read and then we would discuss. And so there was inputs I was gaining and so were my friends. Right from very early days, my parents and my teachers encouraged me to participate in extracurricular activities like debates, like essay writing, like sports. And in fact, 2 months ago, I was speaking to a friend of mine who was 1 year junior to me in school. I was talking to her after a gap of nearly 40 years. And we were talking about various things that happened in school. And she said, yes, you were the best athlete in the school in your class 11. I remember that. And she said, I also remember that you were elected as the head boy of the school. And I was the house captain and she was the women's house captain. And, we had a lot of planning of, sports and cultural activities that we did together. And there was a lot of memories which brought back. And the interesting thing was that there was no talk of disability. And so that was one. And then even in college at St. Stephen's College, I was in the university for 5 years, 3 years of undergraduation and 2 years of post-graduation. I had a number of friends
when I was in college, we were, I think, three of us between first year and MA final who were visually impaired. There were three of us. One was in MA final when I joined. The other one was in, I think, second year. And probably in my second year, there was another visually impaired person who had joined. But the numbers were very, very small. And we kind of mixed, made friends who went out, and socially we were very much part of the college community. Recently, about 3-4 years ago, I was invited by Lady Sri Ram College to speak about how girls with disability could be included in the mainstream of the college. And I found that a little difficult to understand, because when I was in college, I had no problems with being included. And the why of it I will come to later. But these girls were telling us that we don't know what to talk about. We are all the time asked to help them. We're all the time asked to so there are certain requests and norms that have been laid down by the college for including the students with disability. So one of the things I understand is that society cannot be driven by rules. Yes, there are unwritten understandings and traditions and conventions, but they are formed and evolved over time through experience. It cannot be laid down by the Prime Minister, or it cannot be laid down by the city mayor, or it cannot be made down by the residents' welfare president. These are things which are part of the human dynamics. Now, having worked in the disability space for 30 years, for about 15 years as a promoter of cricket for the blind, I have traveled the world. I've been to various countries, interacted with people in different countries. I've also traveled across India and met people who are blind, boys and girls. I've also met people who are in the teaching profession. I've met people in the political class, people in the professional areas, judiciary, police, law. And what I understood was that there was a lot of ignorance. लोगों को मालूम नहीं था कि एक दृष्टिबाधित व्यक्ति के साथ या एक विकलांग व्यक्ति के साथ कैसे एंगेज करें। उनका सोच ये था और उनका जानकारी ये था कि दिव्यांग या विकलांग लोगों को मदद करना चाहिए, उनको दया दिखाना चाहिए, उनको खाना खिलाना चाहिए, उनको सड़क क्रॉस करवाना चाहिए, उनको घर से स्कूल या कॉलेज ले जाना चाहिए, उनके लिए पढ़ना चाहिए, उनके लिए लिखना चाहिए, एंड वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या हम लोग उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं, उनके साथ फिल्म देखने जा सकते हैं, या उनके साथ खेल सकते हैं, उनके साथ हम कॉम्पीट कर सकते हैं। ये सब जो सोच था वो हमारे विजुअलाइजेशन या हमारे इमेजिनेशन, कल्पना के बिल्कुल बाहर था, बाहर है ज्यादातर। एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज दैट पीपल विद डिसेबिलिटी, मैं हमेशा कहता हूँ, आई ऑलवेज से that a blind person is seen as a blind person. He is not seen as a person. उनका जो व्यक्तित्व है वो दृष्टिबाधिता या विकलांगता से डिफाइंड होता है. So that was something which kind of stood out very strongly. मुझे अभी भी याद है एक बार 2005-06 में हमने एक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया था.
हाईवे ये है रोशनी का कारवां, और हम स्पॉन्सरशिप ढूंढ रहे थे उस कार्यक्रम को ऑल इंडिया रेडियो में चलाने के लिए। तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में एक महिला थी, किसी ने कहा कि आप उनसे बात करो, वो आपको मदद करेंगे कुछ स्पॉन्सरशिप लाने के लिए। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये दिस आर द थिंग्स, आई नीड स्पॉन्सरशिप एंड आई वुड लाइक टू कम एंड मीट यू। तो उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस जो है गुड़गांव में है, आप आ जाइए। तो मैंने कहा जरूर, कब आऊँ? तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते मंडे को आ जाइए। तो जब मैं किसी से मिलने जाता हूँ पहली बार, तो अगर मैं वहाँ पहली बार जा रहा हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ कि देखिए मैं उस इलाके में पहली बार आ रहा हूँ, आई एम कमिंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, and when I reach there I will give you a call. If you can send somebody down to the porch and escort me, it will be helpful. तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम है? Then I told him that मैं देख नहीं सकता हूँ, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर उतर के फिर किसी और गलत ऑफिस में चले जाऊँ या किसी गलत व्यक्ति के साथ मिलने के लिए जाऊँ। तो टाइम भी सेव होगा और काम भी जल्दी निपट जाएगा अगर आप किसी को भेजते हैं। तो वो मैडम ने कहा नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम, मैं आपके ऑफिस आता हूँ। So the simple thing was that either a secretary or a peon or somebody in the office could have come down, or she could have left word at the gate with the darwan कि फलाना व्यक्ति आ रहा है और उनको आप हमारे ऑफिस ले आइएगा, क्योंकि वो देख नहीं सकते। उनके बजाय immediately her attitude, her whole response to me changed, and तो मैंने कहा ठीक है, तो अगर आप गुड़गांव से लाजपत नगर आना चाहती हो तो आ जाइए, बट आई कैन ऑल्सो कम टू योर ऑफिस, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो मैंने देखा कि मेरे जो छोटी सी जिंदगी है, 60 साल की जो जिंदगी है, उसमें ऐसे कई मीटिंग्स के लिए मैं गया हूँ, जहाँ पर बॉम्बे में या कलकत्ता में या लंदन में कि मैं बस फोन करता हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ मेरा कोलीग आ रहा है या मैं आ रहा हूँ, और हम लोग रिसेप्शन पे मिलते हैं। सो these are small things, but the attitude and understanding that people have varies. They change from person to person, and it's very, very critical for if you and I have to be socially included, बहुत जरूरी है कि वो हमें इंसार के तौर पे देखें और ये नहीं देखें कि हम ब्लाइंड है, ये ब्लाइंड है, तो they will judge us based on our blindness, they will judge us based on our disability, and हमारे जो इंसानियत है, हमें जो काबिलियत है, उसको वो लोग नजरअंदाज कर देते हैं। पिछले 30-35 साल का जो तजुर्बा में मैंने 4 चीजें देखे हैं, और मैं इन 4 चीजों को संक्षेप में आपके सामने रखना चाहता हूं, और फिर मैं आपसे आपका सवाल जवाब करेंगे। पहला जो मैंने देखा है कि जब कोई दिव्यांग, एक्चुअली ये दिव्यांग शब्द हमारे वोकैबुलरी में अभी आ गया है, पर मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमें कोई दिव्यांगता, हमारे अंग में कोई दिव्यता तो है नहीं। There's nothing divine about me, so calling me divine organ is not justified, but I'm sure there are many people who believe it's a very good terminology, so I will not go into that debate. This is my personal view. So the point is that when you think of George Abraham or Jain Singh Raghav is blind, immediately हमारे परिवार वाले, हमारे जो सहपाठी हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, हमारे जो समाज में जो रहने वाले हैं, उनका जो हमसे जो उम्मीद है वो बिल्कुल कम हो जाता है। People start expecting very little from us. वो ब्लाइंड है तो वो ये कर नहीं पाएगा। मुझे याद है जयपुर में हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे थे 1996
हाँ 1996 या 97 में हम जयपुर में एक क्रिकेट टूर्नामेंट कर रहे थे। तो वहाँ पर हम लोग एक स्टेडियम के बगल में ही एक हॉस्टल था। तो ये दिसंबर का महीना था, तो हमने टेंट वाले से सभी खिलाड़ियों के लिए कंबल रजाई वगैरह मंगाया था। तो रात के 10 बजे मेरे कमरे में किसी ने आके खटखटाया और कहा, सर हमें 10 रजाई और चाहिए। तो मैंने कहा कि हर टीम को हमने रजाई, कंबल, शीट, तकिया और बिस्तर दिया हुआ है, तो आपको क्यों चाहिए, एक्स्ट्रा क्यों चाहिए? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये जो बच्चे हैं वो लोग ब्लाइंड हैं। तो मैंने कहा कि क्या ब्लाइंड होने से आपको ज्यादा ठंड लगता है? तो सो इट इज जब मैं ये कहता हूँ लोगों से तो लोग समझते हैं कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये सही मानों में एक इट्स अ रियल स्टोरी। while we were shooting an episode of नजर या नजरिया जो टीवी सीरियल है, उस दौरान हमारे कार्यक्रम में एक स्टूडेंट था, स्कूल स्टूडेंट था, उनका नाम है आरुष। तो उनको और उनके मदर एंड फादर को हमने इंटरव्यू किया था। तो वो आरुष कह रहा था कि एक बार वो अपने पेरेंट्स के साथ ट्रेन जर्नी पे जा रहे थे, और ट्रेन जर्नी में जब जा रहे थे तो जो साथ में बैठे पैसेंजर्स थे, somebody asked Arush's mother, बेचारा आपका बेटा दृष्टिबाधित है? तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे बहुत बहुत दुख की बात है, तो ये खाना कैसे खाते हैं? तो आरुष ने कहा कि जैसे आप खाते हैं उसी प्रकार हम भी खाते हैं। तो so the understanding that people have, their understanding and awareness of people with disability is restricted to the limitations posed by our disability. They do not focus on our ability. Suppose we are blind, they do not focus on our brain. They do not focus on our hands and feet. They do not focus on our hearing. They don't focus on our ability to speak. So and इस वजह से अक्सर वो लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं। The expectations are extremely low. दूसरी बात, अक्सर आप देखा जाएगा, डॉक्टर विपिन जी ने भी कहा था कि अक्सर जब दिवाली होता है या कोई पर्व होता है या किसी के घर में जन्म दिवस मनाते हैं, तो वो लोग अक्सर घर वाले किसी ब्लाइंड स्कूल या स्कूल फॉर द डेफ एंड डम को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, हम आप लोगों को सबको खाना खिलाना चाहते हैं। I was once in a school in Hyderabad, and while I was sitting there with the principal, I got a call, and they asked, how many blind students in your school? So he said there are 200 blind students. Okay, how many sighted teachers? 25. How many blind teachers? 10. So totally 210 blind people in your school. Okay, so we are sending 210 thalis for your blind teachers and students. So the principal ne kaha, what will the non-blind people eat? No, we can't give them. We'll only give the blind. So maine kaha, then the principal said, in that case, please don't send it. We don't discriminate in our school. The able-bodied and the disabled people eat the same thing, and we all eat from the same pool. So तो यहाँ पर मुझे समझ में आया कि एक तो विकलांग लोगों को एक दया के पात्र से लोग देखते हैं, they look at you with sympathy. दूसरा, दृष्टिबाधित या जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं या चल नहीं सकते हैं, उनको मदद लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो उन लोगों को पुण्य मिल जाएगा, ऊपर स्वर्ग जाने के लिए टिकट मिल जाएगा। तो that is another reason why they look, it's out of sympathy, it is out of
a sense of religious obligation. So the empathy जो चाहिए हमें, जो कोई सोचेगा नहीं कि ये दृष्टिबाधित है, ये जिंदगी में क्या करना चाहता है, ये क्या आगे जाके क्या बनना चाहता है, इसका इनको किस बातों से खुशी मिलती है। दुनिया ये डिसाइड करेगा कि ये दृष्टिबाधित लोग, बच्चे या लोग या व्यक्ति क्या करेगा, ये नहीं सोचेगा कि दृष्टिबाधित व्यक्ति क्या करना चाहते हैं। सो the empathy factor is missing, it is all sympathy. और इस वजह से जब सरकार और स्वयंसेवी संस्थाएं स्कूल वगैरह दृष्टिबाधित लोगों के लिए शुरू किया, हमने देखा कि जो आम स्कूल्स हैं और एक ब्लाइंड स्कूल में, आप भी शायद मेरे से सहमत होंगे, मेरा विचार है कि जब आप आम स्कूल और एक दृष्टिबाधित ब्लाइंड स्कूल का तुलना करेंगे तो बहुत फर्क नजर आएगा। एक तो बिल्डिंग्स में फर्क नजर आएगा आपको, दूसरी बात जो अध्यापक है उनके क्वालिटी में आपको फर्क नजर आएगा, जो सिलेबस है उसमें आपको फर्क नजर आएगा, और जो अपॉर्चुनिटीज है विकास अपना व्यक्तित्व को उभारने के लिए, वहां पर आपको फर्क मिलेगा। और एक बार मैं एक ब्लाइंड स्कूल गया था और प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग हो रहा था, तो बीच में मैंने कहा कि मुझे जरा टॉयलेट जाना है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना घर ले जा रहा हूँ जो पास ही में कैंपस में, वहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा टॉयलेट। तो मैंने कहा कि स्कूल में टॉयलेट नहीं है। उन्होंने कहा टॉयलेट गंदा है। तो मैंने कहा कि टॉयलेट स्कूल का साफ नहीं करना चाहिए, ये लोग ब्लाइंड है, क्या देखा, कुछ देखेगा नहीं। तो the commitment to the dignity of blind people is poor. So so my analysis or my thesis is that अगर आपका expectations low है, अगर आप sympathy के भाव से लोगों को देखते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपका जो एम्पावरमेंट का जो साधन है वो भी कमजोर होंगे। शिक्षा के क्षेत्र, ट्रेनिंग का जो स्कूल्स या इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर भी क्वालिटी डाउन होगा। एंड एज अ रिजल्ट जो एम्पावरमेंट जो ब्लाइंड व्यक्ति को चाहिए या विकलांग व्यक्ति को चाहिए, वो उनको, जिससे वो समाज में अपना स्थान बना सके, वो बहुत ही कमजोर है। इट्स वेरी वीक एंड पुअर, एंड एज अ रिजल्ट when a blind person comes out of school or college, they are not normally employable, and that is tragic. मैंने करीब 6 साल पहले जब हमारे मोदी साहब ने पहली बार ये स्किल इंडिया की बात किया था, तो आई थॉट इट वाज अ पावरफुल आइडिया, एंड उन्होंने तब कहा था कि दे वुड बी द गवर्नमेंट द टारगेट इज इन बाय 2022 37 lakh disabled people will be trained and 80% of them will be employed. 37 lakh people with disability will be trained by 2022 and 80% of them will be employed. So I am a board member of the Sector Skill Council for persons with disability. और अभी भी वहाँ पर प्रोग्राम्स का प्लानिंग हो रहा है। अभी भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि किन प्रोफेशंस को विकलांग लोग कर सकते हैं। ब्लाइंड लोगों की बात करो तो जो भी संस्था ब्लाइंड लोगों को ट्रेन कर रहे थे, वो अभी डेफ एंड डम एंड इंटेलेक्चुअली चैलेंज एंड फिजिकली चैलेंज लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, क्योंकि फंडिंग नंबर्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आप 10 लोगों को प्लेस करेंगे, ट्रेन करके प्लेस करेंगे, तो उस हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगा। तो कई संस्थाओं के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कहा कि ब्लाइंड लोगों को ट्रेन करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनको जॉब दिलाना बहुत मुश्किल है।
Now that is an extremely sad commentary. So the empowerment quality is poor. उसके साथ साथ हमारे जो इकोसिस्टम है, सामाजिक इकोसिस्टम, infrastructure, whether it is physical infrastructure, whether it is digital infrastructure, they are inaccessible. और इसीलिए ये जो accessible India and various campaigns have been running, but अगर आप वाकई में इन campaigns को study करेंगे, the success levels and the implementation levels are extremely low. लोगों ने कहा कि have digital wallets. Now many of the digital wallets are not accessible. Currency notes, most of the currency notes are inaccessible. एक जमाना था जब आप आराम से कह सकते कि ये 5 रुपए का नोट है, ये 10 रुपए का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 20 का है, ये 100 का है. अभी बहुत मुश्किल है कि क्या 10 का है, क्या 50 का है, क्या 100 का है, क्या 200 का है, क्या 500 का है. बहुत मुश्किल. एंड देन कॉइन्स का भी 5 रुपए का कई वर्जन्स हैं, 2 रुपए का कई वर्जन्स है, 1 रुपए का कई वर्जन्स है. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि करेंसी को यूनिफॉर्म करना है, तब गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप करेंसी को यूनिफॉर्म करते हैं तो फिर डिमोनेटाइजेशन दोबारा करना पड़ेगा, क्योंकि सारे नोट्स को वापस बुला के नए नोट्स इशू करना पड़ेगा. तो फिर हाई कोर्ट में कहा कि ओके, इन दैट केस एटलीस्ट मेक द कॉइन्स डिसेबल फ्रेंडली. तो कॉइन्स उन्होंने मार्च 2019 में मोदी जी, मार्च 7 तारीख को मोदी जी ने नए कॉइन्स को रिलीज किया था. अभी भी वो नए कॉइन्स मार्केट में आए नहीं है. 20 रुपए के कुछ कॉइन्स आए हैं, बट बाकी वो भी बहुत कम, बाकी कॉइन्स आए नहीं है. तो फॉर्चुनेटली net NEFT banking and mobile banking and things have become accessible to many of us, so we don't complain about it. But अगर आप आम दिव्यांग या आम ब्लाइंड व्यक्ति को पूछेंगे तो their financial independence has further been hammered. So हमारे तो an accessible ecosystem is also very, very critical. अगर हमें एक inclusive society बनाना चाहते हैं तो so there is societal expectations are low. There is an attitude of sympathy. There is no empathy. As a result, empowerment activities and programs are compromised. They are of poor quality. And अगर आप colleges में भी देखते हैं, they have created an equal opportunity cell in Delhi University. They have created the various special cells in every college. But have they been suitably empowered financially and technologically to support the students with disability? People would say it's a work in progress, but it's a very, 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 very slow work in progress. And bina investment ke, people will find it very difficult to make colleges and universities accessible. So, and unless, it's very, very important समाज की एटीट्यूड्स को बदलना. और हम कह सकते हैं कि समाज बिल्कुल बेरहम है, वो लोग हमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी. बट मेरा मानना है इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस एज पीपल विद डिसेबिलिटी टू बी एम्पावर्ड so that we are capable and able to become part of that society. अगर हम खुद अपना काम नहीं कर सकते हैं, खुद हम ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, अगर खुद हम अपने घर में खाना नहीं बना सकते हैं, अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है, तो हमें इंक्लूड करने में बहुत बहुत मुश्किल होगा. कोई कानून हमें मदद नहीं कर पाएगा. The whole process of inclusion is an organic phenomenon.
ये कानून के माध्यम से लागू करना नामुमकिन की बराबर है. इट हैज टू बी ऑर्गेनिकली. ऑर्गेनिक के लिए हिंदी का शब्द क्या होगा? It's a very important, it's a very, very powerful idea. And unless we, the disabled, are empowered enough to participate in social life, it doesn't have to be at the top level, it can be at any level. If we cannot participate meaningfully, society at large will always think of us as lesser beings. So the social model becomes a reality only if disabled people have the opportunity to be empowered, to become participants in the social milieu of the country. Only then will society give you space. Now, आपने देखा होगा कि इस वक्त कई ऐसे दिव्यांग या विकलांग लोग हैं जो समाज में समावेशित हुए हैं, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आम समाज में समावेशित हो गए हैं क्योंकि वो लोग समाज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कॉर्पोरेट इंडिया में काम कर रहे हैं, वो लोग कॉर्पोरेट सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सो इट इज अ रियलिटी, it is possible. People who have been empowered are part of the mainstream, and I think the only way that people with disability can organically become part of the community is when they are empowered and have the right attitude. We blame the social attitude. I think it's important to look at our own attitude. We need to look at our own attitude and evaluate it. If you're all the time blaming the world, there is not going to be any change. मैं अपना कथन यहाँ पर खत्म करना चाहूँगा एक कोट के साथ. स्टीवन कोवी is a international trainer जो leadership में काफी काम किया है. उन्होंने एक बात कहा है जिसको मैं बहुत ही seriously लेता हूँ. You cannot change the world, you cannot change other people, but you can change yourself. And if you change yourself, the world around will also change. Thank you. Thank you, sir. It was pleasure listening to you. So next we have Sumit sir. Sumit sir, now would you like to start? Yeah, sure. Good evening, everyone. सभी को मेरा नमस्कार. आशा करता हूँ कि मेरी आवाज आप तक पहुँच रही होगी. Yes, I heard. Great. First, I would like to thank Bhumika Trust for sharing this opportunity with me. इस मौके को मेरे साथ साझा करने के लिए मैं धन्यवाद जताना चाहूँगा भूमिका ट्रस्ट का. इसमें हाजिर होने के बाद कई ऐसे अनुभव को जानने का मौका मिला जो कि श्री विपिन मल्होत्रा जी ने बताया, श्री जॉर्ज अब्राहम जी ने बताया, और इन सब अनुभवों को ही जानकर हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं और मेरे जैसे लोग जो कि दिव्यांग नहीं हैं या विकलांग नहीं हैं वो भी अपने परिवेश को बदल सकते हैं. So events like this change perspective of person without disabilities as well. Hearing perspective and experience, vivid experiences of people like Mr. George Ibrahim, Mr. Vipin Malhotra. So thank you everyone to participate in this. कई बातें जो मुझे करनी थी उन बातों के बारे में चर्चा दोनों वक्ताओं ने रखी है. So both the eminent speakers have already shared majority of the sections that I wanted to discuss. Also, not to mention that my experiences are not vivid as those of Mr. Abraham or Mr. Malhotra. तो जितनी भी मेरी छोटी सी अनुभव की कहानी है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे आगे की बात रखूंगा और मैं आजीविका से जुड़ी बात करूंगा. So I'll be majorly talking regarding livelihood. So when we talk about livelihood, essentially yes, we are looking at finding ways of earnings,
household inflow to sustain lives of people. हम यह तो कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक तरीके से वह अपने घर को चला सकें, खुद की ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। लेकिन जब हम आजीविका की बात करते हैं, when we talk about livelihood, we also look at the factors affecting such progress, such growth. जो ये विकास है, आजीविका का विकास है, जब हम इसकी बात करते हैं तो सिर्फ हम पैसे कमाने के जरिए की नहीं बात करते हैं, पर और भी जो मुद्दे हैं जो उसके ऊपर असर डालते हैं, लाइक एडुकेशन, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य जैसे जो मुद्दे हैं, ये वही असर डालते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात जल्द से जल्द खत्म करूं। मुख्य बातें हो चुकी हैं, so we have already covered a lot of crucial issues here, so I'll try to finish this quick. तो आमतौर पर जो देखा जाए तो जो गैर सरकारी संस्था हैं या सरकारी संस्था हैं, उनके अगर स्कीम को देखें तो 3 मुख्य तरह के प्रारूप हैं। So there are 3 major approaches when it comes to livelihood and looking from the lens of persons with disability. We would say there are 3 major approaches here. First is charity based, second is skill based, and third is community based. तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं और इसमें कोशिश ये रहेगी कि हम इसको क्रिटिकली समझें। आई वुड लाइक टू ब्रिंग अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव टू सच अप्रोचेस। तो जैसे कि अगर हम समझना चाहें तीनों अप्रोच में और यह देखना चाहें कि क्यों यह पूरी तरह से समावेशी नहीं है, व्हाई इज इट inclusive when we talk about all these 3 approaches, then I'd like to bring few examples, few facts which can help us understand these things better. चैरिटी बेस्ड की बात करें तो वहां पे जैसे कि हमने पहले भी चर्चा किया कि दया भावना वाली, करुणा वाली बात हो जाती है कि उस आधार पर हम मदद करने जा रहे हैं। I would like to highlight that when it comes to charity based approach, the intention is to help. The intention is to look at persons with disability as those who are incapable. तो यहाँ पे एक नोशन समझिए, तो जो विचार है, जिस विचार से चैरिटी को किया जाता है, वो विचार यह है कि भाई मतलब यह लायक खुद नहीं है, इसलिए हम करें। अब चैरिटी बेस्ड अप्रोच में लाइवलीहुड कैसे सपोर्ट होता है? जैसे अगर कोई काम कर रहा था, उसकी दृष्टि समय के साथ बाधित होने लगी, तो वहां जैसे CSR एक नियम होता है, नियमावली है, जिसके तहत आप अपना जो लाभ हो रहा है, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स यू शेयर सर्टेन अमाउंट ऑन सोशल कॉजेस। आप सामाजिक जो जरूरतें हैं समाज में, उसके ऊपर खर्च करते हैं। तो मान लीजिए कि देयर इज अ पर्सन who is gradually turning blind due to certain reasons, तो वहां पे CSR एक इनिशिएटिव किया गया कि यहाँ पे आंख की जांच करवाई जाएगी, सामूहिक आंख की जांच कराई जाएगी। सो देयर विल बी अ कम्युनिटी आई हेल्थ चेकअप एंड बेस्ड ऑन विच किसी किसी का ऑपरेशन जैसे मोतियाबिंद हो गया, लाइक few people who may be suffering from cataract are treated in those camps. अब इस अप्रोच के साथ अगर हम देखें कि जो इनका असर है समाज में या जो विकलांग लोग हैं उनके ऊपर, so if we look at the kind of impact it's creating on in our society or in terms of persons with disability, तो एक तो काफी रैंडम है। ऐसा नहीं है कि अगर CSR कोई अप्रोच है तो वो पूरे भारत में लागू कर दिया जाए या हर जगह एक ही तरह से किया जाए। सो इट्स रैंडम, इट्स नॉट स्टैंडर्ड, एक ही तरह के नहीं है, इर्रेगुलर है। जैसे कि कोविड के समय में हो सकता है कि किसी को हमने खाना दे दिया, कि सीरियल दे दिया, कि दाल चावल ये सब है। सो वी ऑफन मस्ट हैव हर्ड ऑफ सच रिपोर्ट्स वेयर
grocery was distributed amongst persons with disability. Now that doesn't ensure sustainability of livelihood. आप एक दिन खाना दे सकते हैं, अगले दिन फिर वो जो अनाज आपने दिया वो अगर खत्म हो जाता है तो उसके आगे की कहानी के बारे में ना समाज सोच रहा है, ना ऐसे जो अप्रोचेस होते हैं चैरिटी बेस्ड अप्रोचेस, वहाँ सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं का वही विचार है और उसके ऊपर काफी बृहद तरीके से दोनों वक्ताओं ने चर्चा भी किया. सो इन सच अप्रोचेस द थिंग इज इट्स वेरी शॉर्ट साइटेड अप्रोच, it's irregular, it's random, it's isolated in certain terms and doesn't help one to sustain his or her livelihood for long, be it person with disability or without disability, दोनों ही स्थितियों में. अब आमतौर पर हाँ ठीक है, चैरिटी बेस्ड अप्रोच ये ज्यादा होता है कि विकलांग लोगों के ऊपर ज्यादा लागू किया जाता है. सो in general you will find such approaches being applied to persons with disabilities more. बट आप ये भी देखेंगे कि जैसे अभी जो कोविड हुआ, जो महामारी का दौर रहा, तो कितने एनजीओ गैर सरकारी संस्था, देयर आर मेनी एनजीओ गैर सरकारी संस्था हैं जो कि अभी भी लोगों को चैरिटी बेस्ड अप्रोच में सहायता कर रहे हैं. जैसे कि समवन मस्ट हैव लॉस्ट देयर इक्विपमेंट व्हिच वाज बीइंग यूज्ड टू सस्टेन हिज एंटरप्राइज. जैसे कि स्लम्स वगैरह में, बड़े शहरों में स्लम्स में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है वो कंस्ट्रक्शन का काम करता हो, कहीं मजदूरी का काम करता हो और उसके पास कुछ औजार हों जिनका वह इस्तेमाल कर रहा होगा, लेकिन महामारी के आने से उसने उस औजार को बेच दिया और फिर जो भी पैसे आए उसके मदद से खाना करते हुए या जैसे भी घर जाने की उसने व्यवस्था की. सो there can be a case where a person is living in slum around big cities. He might be working as a construction worker and not necessarily he is a person with disability. Now that person must have sold his tools that were necessary to work as a construction worker to just return back home. Now many of the NGOs, they are providing inputs so that that person can again start to work. कई ऐसे गैर सरकारी संस्थाएं जो आज भी मदद करते हैं इस रूप से कि उसके पास वह औजार वापस से आ जाए और वह काम पर जा सके. पर अगर काम ही रुका हुआ है तो उस औजार का वह इस्तेमाल नहीं कर सकता है. सो इफ ऑन अ लार्ज स्केल द इकोनॉमी itself is in a state of pause, then there are not enough opportunities for either person with a disability or without disability to utilize those tools offered on basis of charity. तो यहाँ पे बोलने का मतलब यह है कि कई एक बार इस अप्रोच में जो जरूरत है, द नीड्स, दे आर नॉट बीइंग आइडेंटिफाइड बाय दोज हु आर फेसिंग इट. जो उस चीज को महसूस कर रहे हैं, जिनको इस चीज की जरूरत है, उनसे इस जरूरत के बारे में नहीं पूछा जा रहा है. तो कहने का मतलब यह है, तो एक अप्रोच में यह भी कमी है. सेकंड, स्किल की बात हम करते हैं और नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किल. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल, थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझ लेंगे. जब कौशल की बात करते हैं, सो आज़ादी के बाद विकास की बात शुरू होनी हुई और वहाँ पे जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों की भी ज़रूरत बढ़ी जिनको हम इस्तेमाल कर सकें अलग अलग तरह के काम करने के लिए. इंडस्ट्रीज नए आ रहे थे. सो post independence we started to talk about development, we started to talk about growth, new industries started to emerge, and to run those industries we required manpower, capable manpower. तो उस समय से देखा जाए तो ITIs का योगदान इसमें आप कह सकते हैं कि वही जननी है स्किल के बारे में जब हम बात करते हैं. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल, ITIs कैन बी कंसिडर्ड मदर ऑफ इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर प्रोवाइडिंग स्किल. तो जब कौशल की बात करें तो थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ. ऐतिहासिक जो भी बात हुई है उसके हिसाब से समझें. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट दैट दे हैव एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री सिंस 1950. 1950 के दशक से वह हमारे देश में है. लेकिन आप अगर
उनके संख्याओं को देखें या उनके से जुड़ी रिपोर्ट्स के बारे में देखें कि कितने विकलांग लोग उनका हिस्सा थे। So when we look at reports or the information that is available on public domain, you can find out that till late 2000, you won't see that many persons with disabilities were a part of these skilling institutions. And then when you look further, you can see the paradigm shift when people started to at least look into इंक्लूडिंग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। मतलब ऐसा आप जरूर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस बारे में चर्चा जरूर शुरू हुई कि जो विकलांग हैं उनको भी इस मुहिम में कहीं ना कहीं जोड़ा जाए, लेकिन वह कितनी सकारात्मक है। सो दोज थॉट्स और दोज एक्शंस, हाउ अफर्मेटिव दे आर, उसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। और उसको समझने से पहले, जैसे श्री अब्राहम जी ने बात की सेक्टर स्किल काउंसिल के बारे में, तो उसके बारे में भी थोड़ा प्रारूप हम समझ लेते हैं। सो like Mr. Abraham talked about sector skill council, so we just need to understand the present structure that enables skilling in India. तो धीरे धीरे करके जो भी संस्थाएं थी जो कि कौशल विकास का काम कर रही थी, सो ऑल द इंस्टीट्यूशंस हु वर वर्किंग फॉर स्किलिंग पीपल were brought under the umbrella of NSDC। तो NSDC जो है और सेक्टर स्किल काउंसिल, इनके तहत सारे योजनाओं को लाया गया, सारे संस्थाओं को लाया गया। अब एक अहम भूमिका जो कि सेक्टर स्किल काउंसिल निभाती है, सो वन इम्पॉर्टेंट रोल दैट सेक्टर स्किल काउंसिल डज इज आइडेंटिफाई प्रायोरिटी सेक्टर्स। जो भी सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको प्राथमिक रूप पर ध्यान देना चाहिए ताकि विकास हो सके देश का, और ये सेक्टर ऐसे हैं जिन क्षेत्रों में अगर काम हो, जिन क्षेत्र में अगर लोग काम करें तो उनकी भी, लोगों की भी आजीविका चलेगी और देश के भी हित में वो बातें होंगी। सो in such way certain priority sectors were identified which can prove beneficial in terms of livelihood as well as bringing forth a pool of capable human resource। तो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद लगभग 38 सेक्टर, सो आफ्टर आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी सेक्टर्स, the sector skill council came up with approx 38 sectors which were considered as that of priority। और इसी तरह से लगभग अलग अलग रोल्स जो होते हैं, जॉब रोल्स, कि मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं कि ऑटोमोटिव एक प्रायोरिटी सेक्टर है, सो इफ वी कंसिडर ऑटोमोटिव एज अ प्रायोरिटी सेक्टर, तो उसके अंदर हम बोल रहे हैं कि एक जो है वो वॉश स्टेशन में काम करेगा कोई इंसान, तो उसके अलग अलग प्रोफिशिएंसी लेवल होंगे, तो अलग अलग उसके जॉब रोल्स बताए गए कि so if we consider that automotive is a priority sector, then we considered one of the role in wash stations, and accordingly we designed various job roles which would be feasible in that workplace। तो 38 सेक्टर पहले तो डिसाइड किए। सो फर्स्ट वी लुक्ड एट 38 प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड विद इन दो सेक्टर्स, उन क्षेत्रों के की जब बात करें तो लगभग 1386 क्वालिफिकेशन पैक्स यानी जॉब रोल्स तय किए गए कि इनकी ट्रेनिंग दी जा सकती है, ऐसे कौशल जरूरी हैं। सो 1386 job roles were identified in these 38 sectors which can be looked upon, which can be touched by institutions providing such skilling services। जो संस्थाएं कौशल विकास का काम कर रही हैं वो इन सब चीज़ों का प्रशिक्षण दे सकती हैं। तो ये नंबर को ध्यान रखिए थोड़ा, क्योंकि इसके आधार पर मैं आगे बात रखना चाहता हूँ जो श्री अब्राहम जी ने पहले ही रख दी है, लेकिन उन बातों को मैं थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूँ तथ्यों के साथ जोड़ के। सो I'll bring certain qualitative or quantitative numbers to support what Mr. Abraham just said during his turn। अब जैसे मान लेते हैं कि एक स्कीम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सो देयर इज दिस स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो वहाँ आप मान लीजिए कि
221 क्वालिफिकेशन पैक्स हैं या जॉब रोल्स, जैसे आप ठीक समझ। सो out of these 221 job roles for which the training is being provided in the institutions imparting schemes like PMKVY, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, only 3 job roles are meant for persons with disability. आप आंकड़ों से अगर समझें तो सिर्फ 3 ही ऐसे जॉब रोल हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर भी जो कि विकलांग लोगों के लिए तय किए गए हैं, यानी 1% समझिए। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये समावेशी नहीं है। दूसरा चीज आप देखिए कि स्किलिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें भी आपको एक आधारभूत शिक्षा की जरूरत है। सो इवन व्हेन वी टॉक अबाउट स्किलिंग, द institutions, the industry expects certain level of minimum education qualification. अब जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो वहां पे देखिए कि जब हम समावेशी आधारभूत संरचना की बात करते हैं, when we talk about accessible or inclusive infrastructure that hinders education or enables education, तो वहां पे कई एक बार जो बातें हैं वो रैंप के ऊपर रह जाती हैं, टैक्टाइल फ्लोरिंग के ऊपर रह जाती हैं। सो most of the times the discussion is restricted on things like enabling railings, enabling braille, enabling tactile flooring, इस तरह की बातें ज़्यादा होती हैं। लेकिन आप जब देखें कि practical learning of certain scientific concepts gets hindered in most of the school or in terms of higher education in the stream of science, considering that the lab equipments or tools present in such scenario are not inclusive at all, especially for visually impaired students. जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनके लिए अगर आप जो उपकरण हैं, जो लैब के अंदर उपकरण हैं जिसमें वह प्रयोग करके अलग अलग चीज़ों को, विज्ञान से जुड़ी बातों को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, तो इसके जो उपकरण हैं वह ऐसे नहीं हैं जो कि जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको मदद खास कर सकें। तो एक तो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उसमें वैसे ही एक कंप्लीट जो स्ट्रीम का है, विज्ञान का जो क्षेत्र है, उससे आपको अलग कर दिया जाता है, या अलग कर दिया जाता है ना भी कहें तो आप उसमें भागीदारी सही से नहीं निभा सकते हैं। और देखा जाए तो अगर ज़्यादातर जो जॉब है, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी है वो विज्ञान से जुड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा हैं। इसलिए आम धारणा भी यही होती है हमारे समाज में कि नहीं नहीं भाई 10वीं के बाद आप विज्ञान से जुड़े। सो द कंसेप्ट ऑफ साइंस गेट्स hindered at a very primary level, at a very secondary level of education itself. और उसके बाद अगर आप मान लीजिए ऐसे स्कीम से जुड़ते हैं, so even after such scenario you try to get attached to a skilling scheme, तो आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर जगह बनाया गया है जो स्किलिंग के स्कीम्स हैं। सो देयर आर standard operating procedures which apply to different schemes and they are quite elaborate. काफ़ी वृहद तरीके से उनको बनाया गया है एक एक चीज़ों को देख के कि अगर जिस जगह पर ये कौशल विकास का पाठ्यक्रम चल रहा है उस जगह सीढ़ी कैसी होगी, उस जगह पे लाइट कैसे होंगे, उस जगह बाकी आधारभूत संरचना कैसी होगी, हर चीज़ के बारे में चर्चा की गई है। सो if you look at such standard operating procedures, it has been elaborately designed to talk about the kind of infrastructure it should have, the kind of equipment it should have. पर सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात आप कहें यहाँ पे अगर देखें तो वह है कि आप जब उस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को पढ़ेंगे और उसमें से मैं एक लाइन बताना आपको चाहूँगा जो कि आपको शुरुआती ही दौर में मिल जाएगी। शुरुआत के जो 10 पन्ने हैं उन्हीं 10 पन्नों में आपको ये लाइन काफ़ी क्लियरली मिल जाएगी
So when we talk about standard operating procedure, you can clearly see such a narrative in the first 10 pages itself. मैं उसको पढ़ना चाहूँगा. While PIAs मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो भी संस्था कौशल विकास का काम कर रही है उनको PIA आप समझ लीजिए. While PIAs may include, may, it's not affirmative. I'll repeat. While PIAs may include person with disabilities, it is not mandatory. इस वाक्य को आप ध्यान में रखें कि उनके लिए यह पूरी तरह से यह सकारात्मक नियम नहीं है कि विकलांग छात्रों को आपको कौशल विकास में मदद करना है. और इसकी व्याख्या काफी स्पष्ट तरीके से की हुई है. उसी तरह से when you look at other guidelines which relate to reasonable accommodations or classroom, they have been mentioned quite elaborately. जब आप बात करेंगे कि आपके सुगमता की बात करेंगे या आपके जहाँ आप पढ़ने जाते हैं कक्षाओं की, तो उसके बारे में जो संरचना की गई है, जो गाइडलाइन बनाए गए हैं, वो काफ़ी बेहतर तरीके से किए गए हैं. पर ये इसी तरह का एलाबोरेशन, इसी तरह की वृहद स्थिति जो है उसमें नहीं बताई गई है जो कि लर्निंग एड्स में है, टूल्स में. सो सच elaboration of specific requirements is not present when we talk about learning aids and tools that are being utilized by skilling institutions. तो आप यहाँ समझ सकते हैं इन दो उदाहरणों से कि क्यों जब श्री अब्राहम जी बोलते हैं कि सरकार की जो बात है कि 2022 तक इतने लोगों को हम कौशल विकास से जोड़ेंगे और वो चीज़ें क्यों नहीं सफल हो रही हैं, तो उससे जुड़ी यही बातें मैं आपके सामने रखना चाह रहा था. So when we look into what Mr. Abraham said during his term, then these are certain facts which we need to understand as to why the numbers which have been created as expectations for person with disabilities are not actually turning into reality. इसी तरह से जब हम बात करें कि अब आखिरी अप्रोच जो है कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच, जो सामाजिक तौर पर अप्रोच होता है, तो वहाँ पे संगठन बना के काम करने की एक बात होती है. सो देयर इज थर्ड अप्रोच वेयर people converge in group, people create association, and then they look into livelihood options. कहने का मतलब कि जो काम वह अकेले कर सकता था, इंडिविजुअल टर्म्स में कर सकता था, वह लोगों के साथ संगठित तौर पर करे ताकि रिस्क डिवाइड हो जाए और उसके साथ बेहतर तरीके ये सब किया जा सके. तो इस तरह के भी अप्रोच है, लेकिन उसमें भी दो प्रॉब्लम है. पहला तो टेक्निकल, जिस तरह से स्किलिंग में है उसी तरह उसमें भी है. सरकार पैसा तो देती है कि आप बढ़िया फैक्ट्री बनाइए, बढ़िया उपकरण लाइए जिससे कि आप रिसर्च डेवलपमेंट कर सकें, लेकिन वह उपकरण जो बना रहे हैं, द प्रोड्यूसर्स, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दोज इक्विपमेंट्स for which the government pays to the community to bring it in place and utilize them, those are not very accessible or inclusive of visually impaired people. तो इस बात को ध्यान रखें कि एक तो टेक्निकल वो बात फिक्स है. दूसरा बात कि एक आम जो धारणा है समाज में, so the notion, the common notion which exists in the community, that again hinders people to participate in such group based initiative. तो यह सामाजिक तौर पर जो सामूहिक तरीके से काम होता है, इसमें जो आम धारणा है वही जो विकलांग लोग हैं उनको इन योजनाओं से जोड़ने में मदद खास नहीं करती. सो आई वुड लाइक टू एंड हियर, आई वुड लाइक टू कंक्लूड. मैं यहाँ पे अपनी बात को खत्म करना चाहूँगा कि अप्रोच कुछ भी हो, लेकिन these approaches are not very affirmative. यह काफी सकारात्मक नहीं है. और मैं इसके बाद आगे चर्चा को बढ़ाने के लिए अनुरोध करूंगा कि
भूमिका ट्रस्ट से जो जुड़े अधिकारी हैं वो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं. सो आई विल रिक्वेस्ट द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ भूमिका ट्रस्ट टू टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड. Thank you, sir, for such an insightful session. Thank you, teachers, for your presence today. Now, I would like anyone, if want to ask any question, is there any question you wants to ask? You can switch on your mic and ask, or you may write in the comment section. Audio now unmuted. हेलो जी बोलिए. हेलो, एम आई ऑडिबल? आई हैव अ हाँ. क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन सर ये था कि एक अवेयरनेस के लिए, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि हम कॉलेज जाते हैं कहीं, तो कुछ स्टूडेंट्स ही हमें मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़ते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं? तो मेरा सिंपली क्वेश्चन ये था कि अवेयरनेस के लिए जो स्कूल्स हैं छोटे छोटे, जैसे नर्सरी, केजी, जो भी हैं, उनमें अगर बच्चे पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत उनको ब्रेल के बारे में या किसी इस तरह से थोड़ा उनको गाइड किया जाए, ताकि आगे चल के उनको ये मालूम पड़ सके कि जो विजुअल चैलेंज है वो कैसे उनको वो पढ़ते हैं, और तो आगे उनको वो और हेल्प कर सके और अवेयर हो सके. देखिए, एक तो तरीका है कि हम एक दूसरे में सामाजिक स्तर पर यह काम करें, और इसमें गैर सरकारी संस्था भी काफी तरीके से मदद कर सकती है. जैसे उदाहरण के लिए, अगर गैर सरकारी संस्था चाहे तो उसके पास इतने संसाधन हैं कि वह इन बातों को, इन भावनाओं को बदल सके. और गैर सरकारी संस्था में बस कंपनी की नहीं बात कर रही हूँ, जो हम मतलब कर रहा हूँ, जो कि कुछ सामान बना रही है या कुछ सेवाएं प्रदान कर रही है. मैं जैसे उदाहरण के लिए लूँ तो मीडिया का उदाहरण लिया जाए तो आप अभी हाल में देखेंगे कि पैरालंपिक्स खत्म हुआ और काफी उम्दा प्रदर्शन रहा जो हमारे दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनका. तो अब जो न्यूज़ आया, न्यूज़ में अंतर देखिए, न्यूज़ में उनको हीरो इस तरीके से बनाया गया कि यह उभर के इस तरह से आए जैसे इनसे उम्मीद नहीं की गई थी, जबकि रिपोर्ट इस तरह से होना चाहिए था कि यह उभर के इस तरह से आए जैसे उनसे उम्मीद हमेशा से रखी जाती है. जैसे कि हम क्रिकेट के ख्याल से बात करें तो आप आमतौर पर देखेंगे लोगों में एक उम्मीद रहती है कि भाई वर्ल्ड कप चल रहा है तो भारत पाकिस्तान से मैच ना हार. तो ये आप उम्मीद मान के चल रहे हैं. आप इसी उम्मीद से अपने विकलांग खिलाड़ियों के बारे में नहीं रखते हैं क्योंकि उसके बारे में चर्चा नहीं है. और जब वो चर्चा सामने आती है, जब वह पदक जीत लेते हैं, तो उस बात को इस तरह से रखा जाता है कि भाई यह हीरो इसलिए है क्योंकि इनसे तो यह उम्मीद ही नहीं थी, जबकि उम्मीद आपको उनसे भी होनी चाहिए. तो पहला तो तरीका ये हुआ कि जो गैर सरकारी संस्था हैं वो जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं या जिस तरह से विचार को रख रहे हैं उस विचार को बदलें, क्योंकि उनके पास ये संसाधन है कि वो सामूहिक तरीके पे और एक बड़े मतलब लोगों को बड़े स्तर पर जागरूक कर सकें. दूसरा है कि सरकारी स्तर पर जब हम बात करें तो वहाँ पे पॉलिसी के आधार पर बदलाव होना चाहिए. जैसे कि कुछ महीनों पहले आपने देखा कि जो नई शिक्षा नीति आ रही है, सो इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज आस्क्ड टू मेक ISL, इंडियन साइन लैंग्वेज जो है, तो उसको नई जो नीति है, शिक्षा की नीति, उसमें सभी स्कूलों में लाने के लिए बोला गया है कि आप लोगों को लाएं. तो अगर लोग जैसे हिंदी पढ़ते हैं, जैसे संस्कृत पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, similarly if they get the knowledge of Indian sign language, then that in itself change the perspective around persons with hearing, speech impairment, things like that. तो इस तरह की नीति जब आप बात करें कि सभी विकलांगता के लिए हो, तो ऐसी नीति नहीं है. सो द पॉलिसी इज नॉट कवरिंग क्रॉस डिसेबिलिटी. इस बात को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि ब्रेल के बारे में वो नहीं है कि इस तरह से किया जाए, सामने रखा जाए.
Thank you, sir. Is there any more question now from anyone? Great. Looks like we have covered all of our questions. Now I would like to invite Mohan to give vote of thanks. Audio now unmuted. धन्यवाद दीक्षा। तो सबसे पहले तो सभी स्पीकर्स जो हमारे श्री विपिन मल्होत्रा सर और जॉर्ज इब्राहिम जी और स्मिथ परीक्षित जी, आपने अपना बहुत ही कीमती Audio समय now unmuted. हम लोगों को दिया है, हमारे भूमिका ट्रस्ट को दिया है, और काफी अच्छा मतलब आपने अपने व्यू पॉइंट हम लोगों के सामने रखे। मैं काफी ध्यान से सुन रहा था परीक्षित जी को भी और विपिन सर को भी, जॉर्ज इब्राहिम सर को भी, और विपिन सर ने इंटरेक्ट भी किया पार्टिसिपेशन में लोगों से, उनके व्यू पॉइंट्स भी जाने डिसेबिलिटी को लेकर, और Audio now unmuted. उनकी क्या थिंकिंग है वो भी जानी। तो ये काफी अच्छा सेशन रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी स्पीकर्स को और पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े, मतलब उन्होंने इतने ध्यान से इस सेशन को सुना, और आशा करता हूँ कि विचारों से लाभान्वित भी हुए होंगे, और भूमिका ट्रस्ट का तो भाई धन्यवाद। हेलो। So thank you everyone. We are now just ending the meeting and ending this webinar, and thank you so much everyone for coming. All the attendees, thank you Diksha for like hosting this webinar. Thank you so much, and thank you so much for every participant for coming, and thank you especially to the honorable speakers, although the two of these speakers have left, and thank you so much sir for coming and giving your precious time over there. Thank you. Thank you everyone. It was lovely interacting with all of you.